جو بڑے بزرگ ہمیں جو 40 اب خیر وہی بات بڑے بزرگ بعد میں آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی بیڈ سے نہیں بیٹھنا, لیکن جو 40 دن کا جو تصور تھا, دیکھیں ان یو کے وہ کہتے ہیں, ان اسکاٹ لینڈ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یور گریو از اوپن ٹل 40 days, وہ یہ کہتے ہیں. تو اس میں آپ کی کیئر بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب یہ جو 40 days کا جو تصور ہے ہیل ہونے کا, تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال سے کتنا ضروری ہے کہ وہ جو نئی لڑکی ماں بنی ہے اس کو ایز اے پرنسس ٹریٹمنٹ دیں. وہ پرنسس ٹریٹمنٹ واقعی بہت ضروری ہے, بیکاز اس میں مدر کو وقت ملتا ہے اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کا. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ بھی سیکھ رہے ہو, بچہ بھی سیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ہینڈل, آپ کو نہیں پتا ہاؤ ٹو بریسٹ فیڈ, آپ کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ڈو تھنگز نارملی, اور اپنے کام کے ساتھ اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے. یہ 6 ہفتے اللہ میں نے بہت امپورٹنٹ دیے ہیں کہ اس ماں کو ملیں جو وہ اپنا سارا وقت اس بچے کے ساتھ لگا دے, اور فیملیز کو چاہیے کہ وہ اس کو رسپیکٹ کریں اس ٹائم کو, اس کو سپورٹ کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, تھوڑے گھر کے کام کاج ہی کرنے پڑ جائیں گے نا, تھوڑی ہیلپ ہی کرنی پڑے گی, لیکن ایک دفعہ وہ بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے, ایک دفعہ وہ سسٹم سیٹ ہو جائے تو آگے کی چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. بس اتنا صبر اور کرنا ہے. ہاں, مین وائل اگر اس کا سیزیرین ہے یا نارمل ڈیلیوری ہے, دونوں صورتوں میں اسٹچز ہوتے ہیں, وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے, شی گیٹس بیک ٹو نارمل. جب وہ ہیلدی ہوگی مینٹلی اینڈ فزیکلی, تب وہ بچہ بھی اسٹرانگ ہوگا اور وہ فیملی بھی اسٹرانگ. اچھا, کوئی ایسی میتھس جو کہ میتھس ہیں اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ابھی بھی ماؤں کو ان پہ فورس کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کھانا, دالیں نہیں کھانی, صحیح, اور دودھ نہیں پینا, پانی نہیں پینا, پیٹ باہر آ جائے گا. ہاں, یہاں تک ہوتا ہے. نہیں, اور کہتے سپ کر کے پینے پانی نہا کے. اچھا, اور نہا کے بچے کو دودھ نہیں پلانا, اور نہانا نہیں ہے. ہاں جی, نہانا نہیں, نہیں نہانے ایسا کچھ نہیں. اگر ابھی نہائی ہو تو بچے کو دودھ نہیں پلانا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے بیفور دا برتھ بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی کالی چیز مت کھانا ورنہ بچہ کالا پیدا ہو جائے گا. ایک اور مزے کی بات, یہ جو 40 دن نہانا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹل میتھ ہے, اس کا کوئی پرانے زمانے میں I took a shower same day. ہم ویری نیکسٹ ڈے شاور دلواتے ہیں. مطلب ایگزیکٹلی ڈاکٹر, ویری نیکسٹ ڈے we ask the patient to get up, walk around, take shower, get ready. اور جو ایپیڈیورل کی بات کری تھی اس کا بتائیں. ایپیڈیورل تو میں کہتی ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے ان مدرس کے لیے جو فرسٹ ٹائم ڈیلیوری کی پروسیس میں ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, بہت اچھا پروسیس ہوتا ہے, اسموتھ لیبر رہتا ہے, وہ انجوائے کرتی ہے اپنے لیبر کو رادر دین یہ کہ وہ مزریبل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ایپیڈیورل سے جو اسٹڈیز ہیں ان میں یہ اسٹڈی ہے کہ بھائی رسک آف انسٹرومنٹل ڈیلیوری وہ تھوڑی ریزڈ ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے ریمارکیبل یا سگنیفیکینٹ, ایسا نہیں کہ 50% کیسز میں جو ہے وہ انسٹرومنٹ لگ جائیں گے, اٹس سگنیفیکنٹلی ریزڈ ہے بٹ بہت لوور لیول پہ. اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ نہ سیزیرین سیکشن ریٹ بڑھتا ہے نہ کوئی اور کمپلیکیشن ہے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں سال تک, وہ جب سے ایپیڈیورل لگا تھا نا تب سے کمر کا درد نہیں گیا. اب آپ ان کا وزن دیکھیں, وہ 95 kg پہ پہنچی ہوئی ہیں, لیکن درد کمر کا ان کو ایپیڈیورل سے ہو رہا ہے. او بالکل صحیح بات. ویسے آپ نے ایپیڈیورل لگوایا تھا؟ نہیں, آپ نے ایپیڈیورل, اور یہی آپ نے سنا ہوا تھا؟ یہی سنا ہوا تھا کہ لائف ٹائم, اینڈ آئی نیو کہ مجھے آئی ہیڈ ٹو ورک, میں سنگل پیرنٹ, تو میں کیسے کمر کے درد کے ساتھ کیسے کام کروں گی. اینڈ دیٹ پریشر واز کہ بیبی کا ہیڈ پھنس گیا ہے اور وہ سکشن سے نکلے گا, اور اس ٹائم میں سوچ رہی ہوں کہ میں سی سیکشن کرواؤں یا یہ مجھے ڈاکٹر کیا وہ سجیسٹ کرتی ہے, اور آپ فینٹ سچویشن میں ہیں, ایک سپ جوس کا پی رہے ہیں, اینڈ دیر از نو ہیلپ بسائڈز مائی مدر. تو وہ اس وقت آل ان آل واز ڈاکٹر کہ ڈاکٹر پلیز یو ڈو اینڈ ٹیک ڈیسیژن آف یور اون. جہاں آپ نے متس کی بات کی نا, وہاں کھانے پینے کے علاوہ بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں یہ بھی نہیں کرو, اٹھو بھی نہیں, زمین پہ بھی نہیں بیٹھو, کام نہیں کرو. بھائی میں سے کہتی ہوں ہڈیاں کچی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسے بس آپ نے بھی ایسے لیٹے بیٹھے رہیں یا گلوڈ ٹو بیڈ ہو یا گلوڈ ٹو چیئر ہو, ایسے نہیں ہوتا. پریگنینسی از اے فیزیولوجیکل کنڈیشن, اٹس اے نارمل فیزیولوجی, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کو روم اراؤنڈ کرنا ہے, لسن ٹو یور باڈی, جہاں آپ کی باڈی آپ کو کہتی ہے کہ نہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ وہ چھوڑ دیں. اچھا, کھانا یہ مجھے بتائیں, کھانا نفسیاتی طور پہ جیسے اگر ہم ویسے ڈاؤن ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو بھی جیسے مجھے رات کو ہے کہ میں نے چائے پی لی تو میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے, میں نے اپنی پسند کا میٹھا کھا لی تو میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ آپ کی پسند کی چیز جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو کتنا ریلیف دیتے ہیں؟ وہ تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کی پسند کی چیز ہوگی, آپ کا پہننا اوڑھنا ایوری تھنگ کمز ان دیٹ, وہ تو آپ کو ریلیف دیتی ہے. اب جو میجر چیز ہے نا, جیسے بھی ڈاکٹر ارم نے بات کی نا کہ 40 دن تو آپ کے ہو گئے جو آپ کو باڈی کو فزیکل ریسٹ مل رہا ہے اور ساری چیزیں, اس فزیکل ریسٹنگ کے بعد پھر آپ یو آر بیک ٹو دا لائف, بٹ یو آر ناٹ بیک ٹو دا لائف لائک
लाइक द प्री बेबी पीरियड तो वो नहीं ना, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो अब आपको वहाँ पे भी ब्रेक लेने हैं, हमें लग रहा होता है कि exactly वो चीज़ हो आपकी जाएगी। सेल्फ एस्टीम पे भी बहुत वो आ रहा होता है, इफेक्ट आ रहा होता है कि यार अब मैं क्या कर रही हूँ, लाइक आई एम लाइक होम मॉम और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ सिवाय बच्चे को देखने की, मेरी वो सारी लाइफ, मेरी सारी जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती थी वो सब की सब बंद हो गई, नाउ आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड, और मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें मॉम शेमिंग भी हो रही होती है, क्योंकि आपका वजन भी बढ़ रहा हो रहा होता है, बहुत सारी Body shaming भी हो रही है आपकी। बॉडी शेमिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम खुद वो जो डिप्रेसिव फेज में आ रहे होते हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर अ वुमन इज़ गोइंग थ्रू स्पेल्स के वो जिसमें उससे काम ही नहीं हो पा रहा, जब वो कंप्लेन कर रही है कि उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, जब वो ये कंप्लेन कर रही है कि उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस हो रही है, शी नीड्स टू बी यू नो शी नीड्स हेल्प एट दैट टाइम। अच्छा, उसके पास उसके वो लोग होने चाहिए, जैसे आप कहते हैं ना, जब ये हमारे जो दोस्त है भी बड़ी अच्छी थेरेपी के तौर पे काम करते हैं। मुझे बताएं ये जो पंजीरी है ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसी क्या ग़िज़ायात होती है कि दी जाएँ? देखिए पंजीरी जो है वो कुछ चंद चीज़ों से मिलके बनती है, जिसमें नट्स हैं आपके पास, सूजी है। अब ये आप वैसे भी खा लें, ठीक है, आप सूजी का हलवा बहुत हल्की सी चीनी या गुड़ डाल के बना के खा लें, या आप नट्स वैसे ही कंज्यूम कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर घी थोक के हिसाब से डालें और उसके बाद आप कंज्यूम करें, क्योंकि हमारी वो एक्टिविटी नहीं है। पहले ख़वातीन बहुत काम करती नहीं और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो चीज़ कंज्यूम करती थी वो बर्न आउट हो जाती थी। हमारे वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हम जब वो घी और वो खाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो असल मकसद घी खाना नहीं होता, असल मकसद ये है कि आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलने चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं अदर देन ये कि हमने तो पंजीरी सुना हुआ ना कि जी आपकी डिलीवरी के बाद पंजीरी खानी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं वैसे नॉर्मल लाइफ में भी आपको पंजीरी खानी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी रखनी चाहिए। आप सिर्फ उन डेज में ना खाएं, आप नॉर्मल भी रखें, लेकिन उसकी कंजम्पशन बहुत कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आप तो फिर ओबेसिटी तो आएगी ना, मोटापा तो आएगा। बैलेंसिंग डाइट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बिफोर एंड आफ्टर, दैट मैटर्स। अच्छा मारुश, मुझे बताएं, बिकॉज यू आर सिंगल मॉम और आपको ये भी प्रेशर था, आपने काम भी करना है, तो आपने अपनी क्रेविंग में से कितनी कट की होगी और अपना वैसे ख्याल कैसे करती थी? अच्छा, मेरे क्योंकि टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल उड़ गए थे, तो मैंने ज़िंदगी में कभी मिर्च नहीं खाई होगी, लेकिन मैं हरी मिर्च चबा के खा जाती थी, मुझे फील नहीं होता था। तो वो मेरे टेस्ट बर्ड्स आते 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 टुक मंथ्स कि वो मीठा क्या है, मिर्ची क्या है, यानी उसका एक अलग डिप्रेशन था कि क्या मैं कभी कुछ टेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मिठाई बहुत शौक से खाती थी, तो वो मुझे फील नहीं होती थी। तो बस मिठाई खा रहे हैं तो खा रहे हैं, दिल कर रहा है दही के साथ सारी सब्जियां डाल के खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बट इट डजंट टेस्ट एनीथिंग। और वो एक प्यूकिंग का जो सिलसिला चलता था, एक डिप्रेशन से मुझे वॉमिट हो जाती थी और एक कुछ खाते ही वॉमिट हो जाती थी। तो वो फेजेस भी आहिस्ता 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 टुक टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, अ ईयर एंड अ हाफ। तो आई बिलीव चीज़ों को सेटल डाउन करते 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 टेक्स टाइम, एंड a doctor that helps you a lot in terms of medication, in terms of mental growth। जो आपको दो अल्फाज एक जो डॉक्टर बोल सकता है, मेरे रोल में डॉक्टर ने बहुत अच्छा वो देखिए अल्लाह भी कंपेंसेट करता है। ऑल द वे लाहौर से कराची आई थी, क्योंकि वही वाला फोबिया कि कहीं मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरा सी सेक्शन ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभी नबी हो जाए, तो हु विल टेक केयर ऑफ मी। सो दोज फियर्स जो आपको प्रेगनेंसी में बहुत डिप्रेस कर देते हैं और एंजाइटी बहुत होती है। आई यूज टू शिवर, मैं अभी भी कुछ चीज़ों को सोचकर मैं हाथ मेरे अभी भी शिवर करना शुरू हो जाते हैं, बॉडी वो आपके फिट्स पड़ते हैं मुझे समटाइम्स। तो इट्स जस्ट द ट्रॉमा डजंट लीव यू जी, आपकी बॉडी में रह जाता है and years and years। सॉरी, ये जो वॉमिटिंग का आप बता रही थी, वॉमिटिंग का जो ट्रॉमा है ये लाइफ टाइम रहता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जैसे प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग्स होती थी नॉन स्टॉप 3 मंथ्स तक, तो कंटिन्यूसली आप कुछ भी खा रहे हैं आप वॉमिट कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्मेल आ गई आप वॉमिट कर रहे हैं, आपकी दिन रात सिर्फ वॉमिटिंग के साथ ही आपकी समझें कि आपकी लाइफ जो है वो जुड़ जाती है। तो वो वॉमिट्स के जो आपके जो उस ज़माने में जो आपने जो स्मेल्स की होती हैं, जो आपने खाया होता है, इवन
दो कि जो सॉन्ग्स आप उस ज़माने में सुनते हैं ना, तो मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि उस ज़माने में जो फेमस सॉन्ग्स थे जो हम सुना करते थे, वो मैं आज से पिछले कोई मतलब अब 5-6 साल हुए होंगे ये चीज़ मेरी ख़त्म हुई है। मैं वो सॉन्ग्स अगर अब भी सुन लूँ ना, कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मैं सॉन्ग सुनती थी, आपको वॉमिट आने लग मुझे नौजिया हो जाता है? नौजिया, मैं समझती थी कि ये कुछ एबनॉर्मल चीज़ क्या है। वाकई ये क्या ट्रिगर करती है? ये क्या ट्रिगर चीज़ें इसके starting कर रही होते होती हैं? है बिकॉज यहाँ पे हमने ये देखा हुआ है ना कि यार चाइल्ड बर्थ इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग ना, ये तो मतलब दुनिया के वजूद ही इसी तरीके से आ रहा है। हम ये नहीं देख रहे होते कि अल्लाह ने जिसके ऊपर अजर रखा है कि माओ के कदमों तले जन्नत है, तो वो क्यों है? इट्स बिकॉज कि ये जो चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा आप लेकर चल रहे होते हो, एंड बॉडी कीप्स अ स्कोर ऑफ दैट ट्रॉमा। बॉडी हमेशा वो जब स्कोरिंग कर रही होती है, एंड दैट ट्रॉमा इज एम्बेडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड ऑल्सो स्पेशल सेंटर्स इन योर ब्रेन। तो जब भी आपके पास वो ट्रिगर्स आ रही है, ट्रिगर्स बन गए ना, वो गाना, वो वॉमिटिंग, मैं उस वक्त ये खाती थी, मेरे साथ ये होता था, मुझे ऐसे एंग्जाइटी के वो होते थे, मुझे अभी भी, अब वो देखो ना ट्रॉमा आ रहा है तो वो अभी भी वही वाले शिवर्स वाले सिम्टम्स आ रहे हैं ना, क्योंकि वो ट्रिगर्स हैं और बॉडी ने स्कोर रखा हुआ है। तो हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि जिस चाइल्ड बर्थ से हम गुजर रहे हैं वो एक बिग ट्रॉमा के तौर पर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ होता है। और ये ट्रॉमास नहीं जाते। जो डॉक्टर आलिया, क्योंकि डॉक्टर आलिया को हॉस्पिटल से कॉल भी आई, तो डॉक्टर आलिया से तो हम इजाज़त लेंगे। मैं आपको बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मेरा दूसरा पैनल, जो बाकी पैनल मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, ब्रेक की बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हम माओ को मॉम शेम करते हैं। एक और चीज़ में ये भी है, क्योंकि हम क्विकली हमारा टाइम कम रह गया, एक बच्चे को पॉटी ट्रेन आप जब करते हैं वो, और उसमें स्पेशली कि आपने अपने बच्चे को डायपर क्यों बनाया हुआ है। हम तो अपने बच्चे को इतना पैसा लग रहा है, हम तो अपने बच्चे को जो वो लंगोट बांधते थे। तो इसमें भी मैंने डॉक्टर साहब, लोगों को बड़े मसले मसाइल होते हैं कि क्या पॉटी ट्रेन वैसे हर बच्चा हो ही जाता है एक टाइम में तो सभी बच्चे हो जाते हैं। हाँ। और मेरे ख्याल में जब बच्चा भरपूर बैठने के काबिल ना हो जाए तो उस वक्त तो उसको पॉट पे बिठाना भी नहीं चाहिए, जब तक उसकी कमर जो है वो इस काबिल ना हो कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, तो उसके बाद ही उसको करना चाहिए। और लोग तो कहते हैं हमारा बच्चा छोटा सा था, वो तो 3 माह का था। हमने मेरे शो में एक खातून आई थी, उन्होंने कहा मेरा बच्चा 3 माह का था, मैं जैसे उसकी शक्ल देखती थी, वो जोर लगा रहा था, उसको पॉट पे बिठा देती थी, तो मेरा बच्चा पॉटी ट्रेन हो गया है। तो मैं कहती थी 3 माह का बच्चा कैसे पॉसिबल है? 3 माह का बच्चा, उसको बिठाना भी खतरनाक है ना, क्योंकि स्ट्रेन आ रहा है उसकी बैकबोन पे। तो आप कम से कम उसको इस काबिल तो करें कि वो बर्दाश्त कर सके बैठना। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। हमें बच्चे को भी, हाँ एग्जैक्टली, प्रेशर्स भी है ना, लोगों के ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं। तो आप जो है वो थोड़ा टाइम लें, बच्चा जब खुद ही सेंस करेगा और जब उसको ये चीज़ खुद ही फील करेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है इस चीज़ से, हाँ। वो एक टाइम आता है, हाँ। जो बच्चा खुद फील करता है। आप देखते हैं बच्चा छुप छुप के पॉटी करना शुरू करता है बैठ के, तो वो क्या है, वो उसको सेंस आ जाती है, खुद में गुस्सा होता है, सेंस आ जाती है ना उसको। तो जब वो उसको सेंस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब वो इस चीज़ को शर्मिंदगी फील कर रहा है। तो उस टाइम पे आप उसको ट्रेन कराना शुरू करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे भी बर्डन नहीं आएगा, बच्चे पे भी नहीं आएगा, और वो आसानी से ट्रेन हो जाएगा। नॉर्मली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक टाइम पर आ ही जाता है। और मेरी वाली भी 2.5 साल की थी, तो स्कूल उसको एडमिशन करा दिया। अभी उसने नया बोलना शुरू किया था, बट शी वाज वेरी लाइवली एंड शी वांटेड टू गो टू स्कूल। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और वो 3 इयर्स का एक टाइम पीरियड है स्कूल का कि उससे पहले आपने करवाना है। ये एक अलग प्रेशर है कि बच्चे ने बोलना शुरू किया है या नहीं किया है। मेरा बच्चा 16 माह में जाता था, बिल्कुल, हाँ। तो वो वहां पर जाते ही उसने जब देखा कि बाकी सब बच्चे जो हैं वो वॉशरूम जा रहे हैं और वहां पे आपने पास करना है एंड एवरीथिंग, within 2 days, no pressure, इसलिए जो पहला बच्चा होता है ना उसको टाइम लगता है, जब उसके सिबलिंग्स होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेन होता है। ये बात मेरे ख्याल से हर बच्चे का एक अलग अपना टाइम है, अपना टाइम होती है कि, और एक माँ के 2-3 बच्चे होंगे, तीनों अलग अलग टाइमिंग्स पे जो है वो पॉटी ट्रेन होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कह रहे थे जी हमारा बच्चा तो 8 माह में चलना भागता था, क्योंकि 8 माह का बच्चा भाग रहा हो तो कोई छलावा टाइप की चीज फील होती है कि ये इज इट पॉसिबल वैसे कि 8 माह का बच्चे? मुझे तो नहीं लगता कि 8 माह का बच्चा चल सकता है। अब आजकल जिस तरह के बच्चे आ रहे हैं तो हो सकता है चल जाए। आजकल बड़े मौजे हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, असल में ना आजकल मुकाबला बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, क्योंकि देखिए ये भी चीज़ है कि हम, जैसे मेरा बच्चा 16 माह में जाना शुरू हो, क्योंकि वो मार्च 1 तो यंगेस्ट स्लॉट में आता है,
तो बहुत सारी माएँ जब मिलके बैठ जाती हैं और उनके बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं, अब कोई बच्चा 2 साल का है, कोई 2.25 साल का, तो सबके माइलस्टोन्स डिफरेंट होते हैं। Exactly. देन यू स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन्स, फिर आप कंपैरिजन जो करना शुरू करते हैं, फिर उसमें आपको वो कहते हैं अच्छा आपका बच्चे ने भी ये नहीं किया, हमारे बच्चे ने तो कर लिया है। ये बहुत है। अच्छा, ये पहले बेबीज में कंपैरिजन होता है, जब माँ सेकंड या थर्ड बेबी को पैदा कर लेती है ना, तो easy हो जाती है। खत्म हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो हो ही मेरे नहीं ख्याल में आखिर वाले में इसलिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है, जिसको हमारे यहाँ वो करते हैं ना कि बहुत लाड प्यार का बच्चा है, वो लाड प्यार करनी है, वो माँ बाप के अंदर एनर्जी ही नहीं इतनी रहती है कि वो वहाँ तक उस पर करे, तो वो जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो पहले बच्चे पे हो रही होती है। लेकिन ये माँ की, अपनी माँ और बाप दोनों की, ख़ास तौर पे माँ की अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि अगर अगेन यहाँ पे ये नहीं है कि उसको कोई बैठ के मॉम शेम कर रहा है, वो अपना ही एक सेल्फ मॉम गिल्ट लेकर जा रही है बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि जब मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में जाएगा वो वहाँ पे भी टॉप ग्रेडर होगा, मेरे बच्चे को यहाँ पे भी आ जाएगा, वो यहाँ पे भी तो बच्चे को कम्युनिकेटिव भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो स्पोर्टी भी होगा, वो एकेडमिकली भी बहुत ब्राइट होगा, वो कैसे सब कुछ हो सकता है? तो दिस इज अगेन मोर ऑफ अ सेल्फ थिंग, जो हमने एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाई हुई होती है, जब वो पूरी नहीं हो रही होती हम अपने आप को भी शेम कर रहे होते हैं और वही शेम हम अपने बच्चे में भी इंस्टॉल कर रहे होते एंड हैं। आई थिंक जो सोसाइटी में आपके फ्रेंड सर्कल में और स्पेशली आपकी इमीडिएट फैमिली में जो लोग होते हैं ना, अच्छा हमारे फर्स्ट बेबी ने तो फर्स्ट पोजीशन ली है और अच्छा उसने ये खाना शुरू किया, उसने पहला लफ्ज़ ये बोला, everything becomes so much for you to deal with कि sometimes आप बच्चे के साथ भी harsh behave करना शुरू कर देते कि हैं। आपको था कि तुम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे। Exactly. तो ये माएँ वाकई ऐसा करती हैं। और फिर दूसरी बात हमसे ये कहा कि एक माँ पे भी प्रेशर होता है कि अगर उसके बच्चे के अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो इसको तो ध्यान नहीं दिया, ये तो अपने फोन में लगी रहती है। बहुत बड़ी हर बच्चे की मेंटल जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, वो भी डिफरेंट है ना। और अगर माँ के कोई लिए बहुत बड़ा प्रेशर है ये कि मेरे बच्चे ने अगर एक्सेल नहीं किया, मेरे बच्चे ने अगर compete नहीं किया, एक ही फैमिली के अंदर, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो हर चीज़ फौरन नज़र आ रही है हर बच्चे की, ये लेकर आ गया, ये लेकर आ गया, तो सबका पूछा जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सख्त प्रेशर होता है माँओं के ऊपर कि भाई मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। और इस चीज़ में एक चीज़ मैं ऐड अप करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो बहुत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इस तरह में नहीं पढ़े हुए होते, तो ऐसी माँ जब बन जाती है, उसको कहते हैं खुद नहीं पढ़ी तो उसने बच्चे को भी नहीं पढ़ाया। दैट कॉन्स्टेंट टारगेट जो आपको किया जाता है कि अच्छा ये अनपढ़ है तो अपने बच्चे को भी इसने अनपढ़ रखा, अच्छा इसको समझ नहीं आया तो बच्चे को क्या पढ़ाएगी। मारोश, इट्स बोथ वेज, अनपढ़ भी और ज्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा यू आर shamed for everything, Everything, yes. even if you're working you're shamed for that, even if you're a home mom then too you're shamed. बस एक मौका चाहिए होता है, लेकिन वही बात है ना कि हमें भी अपनी वो बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं पे सेट करना है।